Ladies and gentlemen, I bring you the owners of this dynamic team. What do you? So, जानवी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि you being a woman and being involved with Bacha, if I may, involved with this sport. पहले तो ये मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूँ कि आपने खो खो खेला है पहले और कितना खेला है? बादशाह आप मुझे बताइए. Yeah, I have played Kho-Kho. A lot? नहीं, a lot तो नहीं. स्कूल में सारे स्पोर्ट्स खेले थे, but I don't know, but not a lot of people also don't know, but my mom used to play Kho-Kho और वो स्टेट लेवल खेली हैं. वो अपने नेशनल कैंप्स में थी when she stopped playing Kho-Kho. मतलब बट मेरा तो खो खो से बहुत इमोशनल कनेक्ट है. तो मम्मी खो खो खेलते थे एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ द स्पोर्ट्स जिसमें विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रही है. विमेन अराउंड द कंट्री आप पूछेंगे तो इफ़ नॉट मोर देन एटलीस्ट एट पार विद द मेल पार्टिसिपेशन. यस यस यस. थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो दैट. तो आपके लिए तो एक फुल सर्कल हो जाता है ये तो. सो एक बहुत ही जैसे कि आपने कहा इट्स एन इमोशनल कनेक्ट. हाँ बट या सर्कल Circle of life. हाँ सर्कल ऑफ लाइफ. Circle of life, right? Janvi, you know, it's amazing that, as Badsha said, कि women इसमें इतने involved हैं जैसे male में हैं. और हम देख रहे हैं कि आजकल my wife and my daughter keep reminding me, and they don't need to, that the women are actually moving way ahead and like taking the right position in life. You want to say something about this? Is participation के बारे में, women involved with sports, and then that getting a global platform. Please. It's, I think women in general are getting the opportunities a lot more than they used to before, and it's also because men are allowing it to happen. Well. But I don't think कि हमारे पास choice है. Right? We don't have a choice. You guys are doing so well on your own steam. yes, absolutely. But men now are becoming more inclusive and more aware of the fact that there is talent, and we should be given the opportunities that we deserve. Yes. And of course then shining, rising does happen. But the reason I would really like to be associated is because I want to be a part, if not a big, but at least a small part to, like sports now in India is being taken seriously. और इतने लोग medals लेके आ रहे हैं in India, they're shining and they're coming forward. So I feel that if I'm a part of any team, then there would be more women inspired to play, or the teams to, would come forward. Yeah. So that's the reason I think that I want to be a part of this. And what better reason, right? What better reason? Thank you so much. And before I let you all settle in and start the ceremonies, आप सब, you all come from the actual देश की मिट्टी. I know you do. I know आप भी actual देश की मिट्टी से involved हैं, connected हैं. So आपकी जो journey है वो more or less self-made, inspirational, motivational है. और आज अभी मैं आपको introduce करने वाला हूँ 28 ऐसे नौजवान लोगों से जिनकी भी कहानी आपकी तरह है, probably 20 साल पहले. It'll be great if you guys can give them a little message at this point. एक थोड़ा सा एक courage, एक motivation. Puneet, if you don't mind. Okay, yeah. मेरा तो एक ही मैसेज है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है. Hi. For all the people who said Kho-Kho is going to be closed or going to be a stopped game. So one of our players has put this on his Instagram
story which I saw this morning, saying who said Kho is going to close down? Here's the start. Yeah, that's it. That's the spirit. Would you like to say something to your lovely players, or they've pretty much rounded it up? Well, you know, it's an absolute pleasure to be here, and on behalf of all of us, thank you for this initiative and this effort. It'll go a long way. To party shuru kare, right? Can you please take your seats? Thank you very much. Ladies and gentlemen, please give them a big hand. So now is a moment which honor of India. These guys are going to make Kho what it's all about. Please welcome our 28 players. May I please
decided for this season, the captain of Mumbai Khiladis will be Vijay Hazare. Congratulations विजय, आपसे तो बातचीत होने ही वाली है, लेकिन उससे पहले बादशाह, if you wouldn't mind announcing the vice captain, इनके right hand man कौन होने वाले हैं, partner in crime? Again, it was a tough decision, but a very apt candidate, Gajanan Shengal. All right. Well, here you have it, this dynamic team, and it's time for a little bit of a photo op, if that's all right with you guys. And of course, this amazing team. All right, I'm going to step aside. All right, please go ahead. Thank you, team. Thank you very, very much. Can I please request जो team members हैं वो please अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, please. And I'll request our esteemed coaches and owners and CEO to please stay on stage for 2 more minutes. Yes, I'll get captain and vice captain later. Can we have some mics here, please? Thank you very much. We're going to be beginning the media interaction in just a minute. But in the meantime, while we're setting it up, मैं आपसे कोच एक सवाल पूछना चाहता हूँ. जो खो-खो है वो नॉर्मली मिट्टी पे खेली जाती है, राइट? प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बादशाह यू नो दिस. लेकिन अब इस टूर्नामेंट से और इस लीग से आप इतने फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अब ये एक मैट पर खेला जाएगा, जो टेक्निक्स हैं वो अलग भी होंगी, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? मतलब विल दिस मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस? आप इसे अप्रोच कैसे करेंगे? जरूर. ये मिट्टी से ही बना हुआ गेम है. स्टार्टिंग से मिट्टी पे ही खेल रहे हैं. मिट्टी से लेके अब हम जब मैट पे आ रहे हैं तो उसमें कुछ अलग जो गेम के लिए चाहिए, स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, एजिलिटी है, अलग अलग मूवमेंट्स है. जिस खेल में हर एक बॉडी पार्ट मसल्स यूज हो रहे, तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी में खेलने के बाद अगर हम मैट के ऊपर आ रहे तो उसके लिए थोड़ा सा साइंटिफिक जो बैकअप चाहिए वो ज़रूर चाहिए, जो हमें एक लीग से मिल रहा है. क्योंकि इसके पहले जितने भी कैंप्स हो रहे नेशनल्स के, स्टेट के, तो इतना बैकअप इन प्लेयर्स को कभी मिला नहीं है. शायद गेम मिट्टी का है. जैसे हमने देखा, सबको मालूम भी है, शायद मेरे से ज़्यादा जानने वाले भी है, कि हॉकी जब एक मिट्टी में खेला जाता था और जो बाद में अभी टफ में खेल रहे, तो भारत के लिए कितनी मुश्किलें पैदा हुई है. अभी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इतना बढ़ गया इंडिया का, तो इसमें बहुत सालों से अभी बाहर के जो यूरोप कंट्रीज़ है
उसमें साइंस में ज़्यादा वर्कआउट है उनका, जैसे फिजियो है, न्यूट्रिशनिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है। तो ये सब यूज़ में बहुत सालों से चल रहा है, जो अभी इंडिया में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बहुत ही अभी आगे जा रही है, और इंडिया में उसको सब यूज़ कर रहे हैं। तो उसके कारण अभी हॉकी का यही ओलंपिक आपने देखो, एग्जाम्पल दिया था जी। तो कितना चेंज हुआ है उसमें। तो यही हमें इस खो खो में यूज़ करना चाहिए। और ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, हर एक गांव के हैं, सिटी से आए हुए, जो सिर्फ मिट्टी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी सडनली मैट पे खेलेंगे। सिर्फ हमारा जितना नेशनल्स अभी हो रहे हैं वो मैट के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ 15 दिन का 20 दिन का कैंप जो यूज़फुल नहीं होगा मैट के लिए, वो परफॉर्मेंस देने के लिए। लेकिन अभी इतना बैकअप मिला है, हमारे साथ फिजियो है, न्यूट्रिशनिस्ट है, ट्रेनर है। तो जो अलग अलग चीज़ें इसमें खेलनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ लगे, क्योंकि मैट के ऊपर डबल स्ट्रेंथ लगने वाली है, डबल एंड्योरेंस यूज़ होगा। इंजरीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो इंजरीज हम खेलने के बाद देखते हैं, तो उसे पहले ही, गेम के पहले ही, कंपटीशन के पहले ही, ड्यूरिंग प्रैक्टिस इंजरीज कैसे कम होंगी इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बाद में तो रिहैब है ही उसके लिए। तो ये सारे बहुत चीज़ें इस मैट के ऊपर मायने रखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। वेल कोच, ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपने एक बहुत ही इमोशनल एक हुक है, एक अराउंड द वर्ल्ड साइकिल। योर मदर वॉज ऑल्सो अ खो खो प्लेयर। जब आपने उनसे कहा था कि आप मुंबई खिलाड़ी के ओनर हैं, आप एसोसिएटेड हैं, आप इस स्पोर्ट को इनकरेज करने वाले हैं, इन यंगस्टर्स को अमेजिंगली आपकी जर्नी की तरह, God willing, and I'm sure you also feel and hope that they get your kind of success, right? What was her feeling from a mother's point of view and from a sportswoman's point of view? I wish them even more success. मतलब कोई सीमा ना हो सक्सेस की जो आप लोगों को मिले। तो मेरे घर में मम्मी स्पोर्ट्स खेलते रहे हैं, मैं स्पोर्ट्स खेलता रहा हूँ। अच्छा, एक और मैं चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि आई थिंक हम ही एक ऐसे ओनर्स हैं जो एक्चुअली में स्पोर्ट्स खेले भी हैं। तो हमें मतलब या तो ये बहुत बुरी चीज़ होती है या बहुत अच्छी चीज़ होती है। बुरी चीज़ इसलिए होती है कि हम एक एक चीज़ समझते हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनकी, है ना। तो ये कहते हैं कि किसी एक्टर को प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैं तो बन गया। अरे यार, पहले बताना था। तो मतलब हम जिस तरह से आई थिंक हमें लगता है कि हम टेक केयर करेंगे अपने प्लेयर्स का, अपनी टीम का, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई और उस लेवल पे पहुंच पाएगा। हालांकि सबकी मैनेजमेंट्स बहुत अच्छी हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन हमारी मैनेजमेंट, हमारी टीम का जो एक सिनर्जी है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने एक छोटा सा कन्फेशन भी है कि जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस चीज़ में आऊँगा, तो मुझे तो लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम दूंगा, और मुझे ये गलत फहमी थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा। बट ऑल थैंक्स टू पुनीत भाई हियर, मतलब यू नो ही इज़ बिन विद देम लाइक एन एल्डर ब्रदर। तो जो भी मतलब यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब ऐसा नहीं है कि ओनर है तो ओनर है, ही इज़ बिन देयर इन द फील्ड, और सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। मधुकर हियर इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, इज़ द CEO। बट फिर जब मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे सीन हो गया है कि मैं सोच रहा हूँ खो खो का, तो कहते हैं ठीक है। फिर जब मैंने उनको बताया कि मैंने टीम ले लिया, तो मेरा को रिएक्शन दिया कि तूने टीम ही खरीद ली। मतलब वो सोच रहे होंगे कि शायद आप जाकर प्रैक्टिस करेंगे, खेलेंगे। कि हाँ कुछ कि चलो ठीक है, प्रमोट करेंगे, शो वो कर देंगे। बट शी इज़ रियली हैप्पी, शी इज़ एक्चुअली रियली हैप्पी। पेरेंट्स जितनी हैप्पीनेस दिखा सकते हैं उतनी दिखाई उन्होंने। Absolutely. And बप्पा जी की तो ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। जी। बप्पा जी की तो ब्लेसिंग्स हैं, सिद्धि Of विनायक course, आप गए थे, of course. एंड ऑफ कोर्स माँ की जो ब्लेसिंग्स होती हैं Yeah. वो आपके साथ भी है, एंड आप सबके पूरी साथ टीम को भी आशीर्वाद भेजा भाई लोगों। There you Sorry, go. मैं आपको बताना भूल गया। ऑल द बेस्ट। बट आपने कहा है कि यू नो
being a woman, she supported, she played. ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि आज के ज़माने में फिर भी ये प्रोग्रेसिव हो गया है उस ज़माने में. एंड आई डोंट मीन टू प्रे, लेकिन ये करीबन 20 साल पहले की बात, 20-25 साल काफी कब से- टाइम पहले की बात है जी ये. हाँ. उस वक्त व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट एट इज दैट नहीं, मेरे नान के थोड़े अजीब ही थे. अलग ही केस था. तो ऐसे ऐसे अजीब ज्यादा हो यार. हाँ. है ना, ऐसे अजीब ज्यादा ऐसे हो. अजीब ज्यादा ऐसे ही हो. तो वील बस ऑल ये प्रे करता हूँ मैं. हाँ. और उसी से तो बादशाह पैदा होते हैं. अरे वाह. लेकिन द पॉइंट आई एम गेटिंग एट इज दैट I can't not ask Janvi this again. It's amazing क्योंकि मैं आप सबको ये अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि the only woman who's involved as an owner in this entire league, I think that deserves a big hand. Ladies and gentlemen, that's amazing. I know, Janvi, okay, I asked you this question before, but if you can just a little highlight on it, because you really are at the crux of becoming an inspiration for so many women who want to encourage sports which are not only commercially viable sports till now, but also the sports जो से निकलती हैं. So kudos to you along with everybody out here. But please, थोड़ा सा इसके बारे में say something, because whatever you say right now is going to be an inspiration and keenly heard by a lot of women sitting there. Please. So I'm really happy that I'm associated with the league, and I would love to be a part, like I said earlier, that to allow a lot of other women or feel inspired at least to associate with sport. And ये सब लोग इंडिया में स्पोर्ट्स को, जैसे मैंने बोला, सीरियसली अब ले रहे हैं. And Indian women are bringing home so many medals. So why shouldn't there be more women owning That's teams, right. promoting more women, having women play the sport, Yes. as much as they should. So I would like to be a part of that. And you are a very, very big part of history. History is being made today. Amazing. Okay, I can continue to ask all these questions, but I know that you all do it much better than me. So it's open to the lovely press and the media here. Please, if the mics are ready, if there's any questions that you would like to ask this amazing lot of 7 individuals and, of course, our entire team out here. Please, the floor is open for questioning for the media. Hello everyone, my name is Anuj Prabhu. I am from Sports Kida. My question is to the coach. जो उन्होंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मिट्टी से मैट का जो सफ़र है उसके लिए मेरा सवाल आपसे है बादशाह जी, हम देखें कि आईपीएल में जो भी टीम रहती है उनका एक थीम सॉन्ग रहता है, तो क्या हम देख सकते हैं कि आपका भी मुंबई खिलाड़ीज़ के लिए थीम सॉन्ग हो? सर मैं लेट हो गया हूँ, मुझे आज रिलीज करना था. लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स थीम सॉन्ग होगा. एक हुंकार होती है, वो होगी. और ऑफ कोर्स दैट्स द मिनिमम दैट आई कैन डू फॉर दीज गाइज. ऑफ कोर्स वो होगा, गोज विदाउट सेइंग. कुछ रैप का भी तड़का होगा उसमें? वही आता है सर मेरे को, वही होएगा उसमें. और या कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मिलके बनेगा. बिकॉज इवेंचुअली मोटिवेशनल होना चाहिए, तो ऐसा सही कुछ होगा. आप सुनेंगे, जल्दी सुनेंगे. जी. Coach, we have a question for you.